Hello students, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Major Domains of the Earth. The Earth is a wonderful planet. The presence of water make possible survival of all forms of life on Earth. Oceans and water vapor to air makes water available on land, and the domain of the Earth extends to a layer of air that surrounds it, consisting of oxygen and other gases necessary for life on Earth. अर्थ जो है एक वंडरफुल प्लेनेट है. अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी. ओके, वाटर के अलावा यहाँ पर क्या है, एयर है जिसमें ऑक्सीजन होता है जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं. उसके अलावा अनदर डोमेन एक्सटेंड्स टू ओशियन. वाटर की दूसरी फॉर्म क्या होती है, ओशियंस. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो और लिव विदाउट वाटर. क्या प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं पानी के बिना? नो. The land is formed of rocks. Rocks are also found at the bottom of ocean sediment. जो कि हमारी लैंड है जिस पर हम रहते हैं वो किसकी बनी होती है, रॉक्स की बनी होती है. रॉक्स भी हमें कहाँ से फाउंड होता है, कहाँ से मिलता है, from the bottom of ocean sediments. Humans, plants and different forms of life are available on land. Thus, land, water and air are the three realms or domains of the earth into which the earth can be classified. Since all these three realms extend support to life, therefore life forms the fourth domain. तो कितने डोमेन होते हैं अर्थ के? लैंड, वाटर एंड एयर एंड फोर्थ इज लाइफ, बिकॉज ये तीनों रियाम सपोर्ट करके लाइफ की पॉसिबिलिटी करते हैं. With the emergence of life, Earth's climate acquired and settled down to display certain uniformity. Climatic conditions caused rock disintegration. It resulted in the formation of soil, which makes a significant part of the earth crust. Thus, the four realms are interactive and cannot be isolated from each other. These realms or domains are lithosphere and hydrosphere, atmosphere and biosphere. Let us read one by one. First is lithosphere. Since rocks are the main material from which earth is formed, rock से बनी होती है अर्थ, and the earth is known as the terrestrial planet, यानी जहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पर धरती है. This whole rocky sphere is known as the lithosphere. Litho means rock. Fine. तो lithosphere, litho means rock होती है, sphere जहाँ पर हम रहते हैं. lithosphere यानी ऐसा एरिया जहाँ पर rock ही rock होती है. There are two main parts of it. The major part is covered with water known as oceans, and the smaller part that is not covered with water is known as land. तो जो हमारी lithosphere है वो दो पार्ट में मिलके बनी है, oceans and land. The land part of the lithosphere is classified into 7 continents. और जो land part है वो 7 continent में बटा हुआ है. The continents and oceans floors are formed of solid rocks. Together, they constitute earth crust or lithosphere. To learn more about the earth's crust, it is significant to know something about the interior of the earth. अब हम पढ़ते हैं interior of the earth. The interior of the earth has three main layers called the crust, the mantle and the core. Interior of the earth कौन कौन सी layer होती हैं इसमें? Crust, mantle and core. Okay. Each of these three layers consist of two divisions. There is a thick layer of soil on the outer crust. It is found only in certain parts of the earth. Even where it is found, it is a very thin layer. It consists of disintegrated rock and decomposed organic matter called humus. It is this soil which is indispensable for plant growth. This crust is thicker under the continents than under the oceans. Okay, let us discuss the interior of the earth. आउटर पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट. ठीक है, जहाँ पर जैसे जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, वो कौन सा पार्ट है? क्रस्ट है. ओके. उसके बाद मिडल पार्ट कौन सा होता है? मेंटल. ठीक है, बीच का जो पार्ट होता है. उसके बाद आउटर कोर यानी जो इंटरनल पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इनर कोर और दूसरा है आउटर कोर. Below this layer is the upper mantle, then the crust. The upper mantle and the soil together make us the lithosphere. यानी
अपर मेंटल, हर एक लेयर को दो दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट। ओके, क्रस्ट और आउटर मेंटल ये बनके क्या मिलता है हमें, लिथोस्फेयर। The lower mantle is in semi-molten condition. It extends towards the interior of the earth to a distance of about 2900 किलोमीटर. Beneath the mantle lies the core. और जो mantle है इसका एरिया कितना है, 2900 किलोमीटर, और mantle के नीचे क्या आ जाएगा, अंदर का जो पार्ट है, अंदर का हिस्सा है अर्थ का, that is called core. The upper part of the core is in liquid state. जो upper part होता है core का वो कैसा होता है, liquid state में होता है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द इंटीरियर इज सॉलिड, लेकिन उसका इंटीरियर पार्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। द मोल्टन रॉक अलोंग विद गैसेज एंड स्टीम इज नोन एज मैग्मा। और मैग्मा क्या होता है, मोल्टन लावा। अब मैग्मा जो होता है वो मूव करता रहता है, अर्थ में मूव करता रहता है, जहाँ से भी उसको क्रैक मिलते हैं, जहाँ से भी कोई फिशर्स पॉइंट मिलता है रॉक से, वो वहाँ से निकल जाता है, और उसको क्या कहते हैं, या तो अर्थक्वेक के द्वारा, इट कॉजेज बोथ अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज, जो हम कहते हैं लावा फटना या वोल्केनो फटना। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द जो मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन लावा होता है, वो रॉक से बाहर आ जाता है। Magma sometimes solidifies as it makes its way to the earth surface, resulting in the formation of new rocks. और जब ये molten lava जब अर्थ की सरफेस पर आ जाता है तो उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाता है, solidify हो जाता है, इस तरीके से क्या बन जाती है, नई रॉक बन जाती है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब water. Hydrosphere is the sphere of water, especially the water in the oceans. It is divided into 4 major oceans, several seas and lakes. More than 70% of the Earth's total water is covered by oceans. The water only changes its state, liquid, solid and gases. 3 टाइप में आपको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है अर्थ पर। इन लिक्विड फॉर्म इट एग्जिस्ट इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड reservoirs and even forms a part of all living things. In its solid state, it exists as ice sheets or snow cover on mountain tops and as glaciers or ice sheets at the Arctic and Antarctic ice caps. The gaseous form of water is the water vapor in the atmosphere. और 3 तरीके से आपको पानी की अवेलेबिलिटी होती है। दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में पानी टर्न होता है, कैसे बारिश आती है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस रीड द टर्म हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। The hydrosphere forms an important component of our physical environment. Water plays an important role in circulation of nutrients between lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Plant growth on land can neither take place without water, nor can human beings live on land without water. लैंड पर ना ही ह्यूमन बींग रह सकते हैं, ना ही पौधे ग्रो कर सकते हैं अगर पानी नहीं होगा, यानी अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं होगा। तो पानी क्या है, तीनों का, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इनके तीनों में जो भी न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन है वो उसकी सप्लाई करता रहता है। दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. Besides water in rivers, lakes, ponds and reservoirs, the water is put to hundreds of uses including irrigation, power generation, cleaning, cooling, bathing, for drinking and hundreds of industrial uses. It also performs the function of rock disintegration and supports a variety of life forms in oceans. Since ocean water comprises more than 96.5% of total volume of water on earth, it is very water and becomes available on land through a natural process called the water cycle, or we can say hydrological cycle. It makes the water move between lithosphere, atmosphere, biosphere and hydrosphere and keeps the total quantity of water on earth always constant. वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, पानी का ट्रांसफॉर्मेशन, पानी का सर्कुलेशन होता रहता है लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में, फिर बायोस्फीयर में, फिर हाइड्रोस्फीयर में, और ये कंटिन्यूटी रहती है, जिससे क्या होता है, पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है. Differential heating by the sun is mainly responsible for circulation of water in the hydrosphere. और क्यों होता है पानी का सर्कुलेशन, कैसे हो पाता है, because of the sun. ओके, कैसे वो हम पढ़ने जा रहे हैं.
The water in oceans is heated by solar radiation during the daytime. दिन के टाइम पर जब सूरज चमक रहा होता है, सन रेज से जो ओशियन का पानी है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. This heating of water makes water vapor which then rises into the atmosphere. This is known as evaporation. और इससे क्या होता है, जो हीटिंग ऑफ वाटर है इससे वाटर वेपर बन जाते हैं. वाटर वेपर जब बन जाते हैं तो वो ऊपर उठ के क्या एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं. इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं एवोपोरेशन. ओके, नाउ वार्म एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर देन कूल एयर. अब गर्म हवा जो होती है वो वाटर वेपर को क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है. When water vapor rises, it gets cooled because temperature falls with altitude. अब जैसे वाटर वेपर जो है ऊपर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कूल होता है. जैसे जैसे हाइट पे हम जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है. फाइन, तो वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. द कूल्ड एयर कैन नॉट होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एज वार्म एयर. इफ द एयर इज टू कोल्ड, crystals of ice may form. This conversion of water vapor into teeny droplets or ice crystals is known as condensation. जब जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन होके बारिश की फॉर्म में या आइस क्रिस्टल की फॉर्म में जमीन पर गिरने लगता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. Now condensation is the opposite process of evaporation. These teeny droplets float in the air, join together around dust particle and form cloud. अब ये टाइनी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं जो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं. The heavier drops cluster together and fall back to the earth as rainfall और snowfall. अब इकट्ठा क्लाउड जब हैं ये जुड़ के जब कंडेंसेशन होती है तो उसके कारण क्या होती है, बारिश होती है या पहाड़ी एरिया में स्नोफॉल होती है. रेनफॉल एंड स्नोफॉल टुगेदर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. और रेनफॉल और स्नोफॉल को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्रेसिपिटेशन. A part of this precipitation is absorbed by the roots of plants on the ground. अब जब बारिश होती है तो जो पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी को होल्ड कर लेती हैं. They then give it out to atmosphere known as transpiration. अब पत्तियों के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है. ये पानी फिर से जो प्लांट्स की पत्तियां हैं, लीफ होती हैं, उन पर दोबारा से आ जाता है. Some water also seeps below the surface through joints or fissures in rocks or pores left by the roots of the plants. This is known as underground water. और कुछ पानी धरती के अंदर चला जाता है जिसको क्या कहते हैं, underground water. This underground water form of spring, well, etc. rivers and streams ultimately flow into the oceans, lakes and seas and the water cycle starts up fresh. इस तरीके से जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि फिर से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्प्रिंग और वेल के द्वारा बाहर आ जाता है और रिवर और स्ट्रीम्स के द्वारा बाहर आ जाता है, फिर से वो ओशियन में चला जाता है, फिर से तेज़ धूप के कारण वो एवोपोरेशन का प्रोसेस होता है, फिर क्लाउड बन जाते हैं, फिर से बारिश होती है. तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ साइकिल एंड द प्रोसेस इज रिलेटेड टू वाटर. दैट्स वाई इट नेम्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वी कैन से वाटर साइकिल. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. Atmosphere is the gaseous envelope that surrounds the earth. There are three main characteristics of the envelope of air. Atmosphere क्या होता है, gaseous envelope जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है. Air is a mixture of gases. Air has weight. The envelope of air has a structure or exists in layered form, and these are the three main characteristics of atmosphere. Now, mixture of gases. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें क्या है आपका अलग अलग टाइप की गैसेस हैं. 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन एंड 1% क्या है आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, जिसमें 1% डस्ट पार्टिकल आती है और आर्गन गैसेस आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. ओके, all these gases, dust particles and even carbon dioxide within their individual limits are essential for the survival of terrestrial life.
Without water vapor or even dust particles, there would be no rainfall or snowfall. Similarly, a small amount of carbon dioxide is also necessary. Plants use it to make food along with other inputs जैसे sunlight, water, minerals, with chlorophyll acting as a catalyst. It is necessary for all animals including humans and to breathe oxygen in order to stay alive. Oxygen is also found in the soil. Plants take in this oxygen through their root along with the water and nitrogen. इस तरीके से एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं वो कैसे ना कैसे हमारे लिए क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर का क्या होता है? वेट होता है. एयर हैज़ वेट. देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड्स टू द वेरी fringes of space. Since air has weight, this vast quantity of air above exert great pressure on everything on the earth. All living things breathe air, but since air also exerts the same pressure inside the body as it does outside the body, this atmospheric pressure is balanced and not felt. The atmospheric pressure is greatest at ground level and decreases with altitude. जैसे जैसे जो अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर हैं वो अलग अलग डिफरेंट होती हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है. दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई माउंटेनियर्स एंड एयर पैसेंजर्स नीड ऑक्सीजन ब्रीथिंग apparatus at higher altitude to be able to breathe. और यही कारण है कि जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स पर चढ़ते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर लोग जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेकर जाते हैं. Air always move from high pressure areas to low pressure area. This horizontal movement of air is called wind. हवा हमेशा कैसे मूव होती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. Winds causes change in weather conditions and bring rainfall. For example, in summer, because of low pressure over land, winds move from the Indian Ocean towards the Indian landmass. Since these are moisture-laden winds, they cause heavy monsoon rainfall throughout the India. जैसे कि इंडिया में मानसून आता है, मानसून के द्वारा बारिश आती है, वो भी क्यों आता है? Because of the wind, because of the low pressure over land, winds move from the Indian Ocean toward the Indian landmass. Indian Ocean से हवा किस तरफ मूव होती है? Indian landmass की तरफ. और ये मॉइस्चर भरी जो हवाएं होती हैं ये इंडिया में क्या लेकर आती हैं? रेनफॉल लेकर आती हैं, और इन हवाओं को क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. Air around the earth is like a shield and is made up of several layers. There are 5 important layers and these layers together act as a protective shield around the earth. They do not allow any water vapor to escape into space. Okay? तो बहुत सारी लेयर होती हैं अर्थ की, 5 लेयर होती हैं. 5 लेयर इतनी ज़्यादा ये एक दूसरे के साथ बाउंड होती हैं कि एक वाटर वेपर भी स्पेस तक नहीं जा पाता. And this layered structure is also responsible for keeping the earth warm at night. और इसी लेयर स्ट्रक्चर के कारण जो हमारी अर्थ है वो कैसी रहती है? वार्म रहती है नाइट के टाइम पर. एंड द अपर लेयर डज नॉट अलाउ द बल्क ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन और आउटर स्पेस, फॉर एग्जांपल गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच द अर्थ सरफेस. और जो अपर लेयर है, थर्मोस्फेयर लेयर जो है, वो जो स्पेस से रेडिएशंस निकलती हैं वो अर्थ पर आने से या सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ज़मीन पर आने से रोकती हैं. Above all, radio waves bounce off certain parts of this layered structure and return to Earth. This help in relaying radio signals around the Earth. Without this phenomena, we would not TV, wireless transmission, etc. और इसमें रेडियो वेव्स भी होती हैं जो कि आपके थर्मोस्फेयर में होती हैं, और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो स्पेस तक ट्रैवल करके दोबारा अर्थ पर आ सकती हैं. यही कारण है कि हम सिग्नल के द्वारा जो प्रोग्राम ट्रांसमिशन है वो अपने टीवी पर या फिर रेडियो पर सुन सकते हैं.
The atmosphere is also a medium that allows sound to travel. It is because of air atmosphere that we are able to hear each other voice, और because of the air ही possible है, क्योंकि air act as a medium to travel sound, तो air के कारण ही possible है हम एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं. Next is biosphere. The narrow zone of contact between land, air and water is called the biosphere. It is within the zone that life exists. Thus, the biosphere is the zone where three realms and the biosphere itself establish an interrelationship and are interdependent of each other. Indeed, the focus of physical geography is the biosphere. This interrelationship and interdependence needs to be studied and understood properly in details. Okay, what is biosphere? जो भी आपके जितनी भी लेयर हैं वो आपस में कहाँ मिल पाती हैं? बायोस्फीयर में मिल पाती हैं. जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारे स्फीयर मिल के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं. There is constant exchange of energy between the biosphere and the other three realms of the earth, and the atmosphere returns water to the hydrosphere while the lithosphere and soils are dependent on atmospheric condition like rainfall, sunshine and even the types of rock. Okay, जितनी भी बायोस्फीयर की ये लेयर हैं ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. कैसे? लिथोस्फीयर पर पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जिसको पानी पर जो डिपेंड करते हैं यानी हाइड्रोस्फीयर पर डिपेंड करते हैं. उसके अलावा पेड़ पौधों के कारण क्या आती है? बारिश आती है. बारिश के कारण जो एटमॉस्फेयर है उसकी हवा या विंड जो है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, रेनफॉल आती है, या सनशाइन है वो चेंज होती है. उसके बाद एटमॉस्फेयर के कारण फिर से वाटर प्रोवाइड होता है. इनडायरेक्टली ये इंटरडिपेंडेंट हैं तीनों लेयर आपस में एक दूसरे पर. ओके, when there is food available in the surroundings, animals and are also present there. Thus, this give and take relationship goes on in endlessly. Dinosaurs lived on Earth long time ago. About 65 million years ago, there were sudden and drastic changes in the environment. The dinosaurs could not adapt to these changes and soon became extinct. It was then that mammals finally got a chance to develop and spread quickly in many forms. Thus, many new life forms, including man, came into being. This natural process goes on endlessly. और बहुत टाइम पहले जब डायनासोरस होते थे ऐसा माना जाता है कि एकदम से जो बायोस्फेरिक या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई थी कि जो डायनासोरस हैं वो उस कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए, उस मौसम को वो अपने अनुसार खुद को नहीं ढाल पाए उस मौसम के अनुसार, और वो बिल्कुल लुप्त हो गई. ठीक है, उसी के कारण ये है कि ह्यूमन बीइंग है या प्लांट है वो ग्रो करना शुरू हुआ. तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस है यानी इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है. नेक्स्ट इज मैन एंड इन्वायरमेंट. Physical environment includes the land, air and water comprising the landforms. Plants and animals that surround us. Changes in the environment happen naturally. Such changes are usually gradual and affect the life forms over millions of years. However, in the past few centuries, there have been rapid changes in the physical environment on account of the following actions of man. जैसे कि फर्स्ट है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं प्रकृति में, एटमॉस्फेयर में. क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैन के कारण? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. 15 से 20 साल में जो ये पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है. इस कारण लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, लैंड को यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं जो हमें अर्थ प्रोवाइड करती है उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो एक तरीके से जो प्लांट स्पीसीज हैं और बहुत सारे एनिमल हैं वो क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं. सेकेंड इज डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों का काटना, फॉरेस्ट का काटना. एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो क्या करते हैं लोग? फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं, पेड़ों को काटते हैं. फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं.
एनवायरनमेंट में जो गैसेस का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन एनिमल्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। जब पेड़ों को काट देंगे हम, जंगल नहीं रहेंगे, तो एनिमल्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। Many activities of human beings are responsible for pollution. These activities like large number of transport vehicles, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उसके अलावा जो ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट निकलता है किचन से, लेबोरेटरीज से, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल से, इनके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ओके, they are making water bodies dirty and polluting the air by adding more carbon dioxide and many undesirable gases to it। अब अगर हम इस वेस्ट को बर्न करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है उससे हमारी एयर पॉल्यूट होती है, जो डर्टी वाटर है उसके कारण हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। Environmental pollution is seriously upsetting the relationship between lithosphere, atmosphere and hydrosphere. For example, oil spill and other waste that flow into water bodies cause havoc to marine life. As a result, rainfall patterns get disturbed and this in turn affects plant growth adversely. Since plants are the basic source of food on earth, the whole balance of nature is upset. These phenomena are becoming increasingly visible all around us। जैसे कि धुआं निकलता जो है, पानी जो निकलता है, गंदा पानी निकलता है फैक्ट्री से या अदर वेस्ट निकलते हैं, उसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, जिससे मैराइन लाइफ जो है वो डैमेज हो जाती है। और इसके कारण क्या होते हैं, जो बारिश है वो अलग क्वालिटी की होती है, तो उसके कारण पूरा का पूरा जो हमारे बैलेंस सिस्टम है इन्वायरमेंट का, वो क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। Apart from flow of waste into surroundings, there is an increasing demand for food for man and his cattle। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण फूड की डिमांड भी बढ़ रही है मैन एंड हिज कैटल के लिए। दिस हैवी प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड कोजिंग सॉइल इरोजन ऑन अ लार्ज स्केल। इसके कारण एग्रीकल्चर पर एक हैवी प्रेशर आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने का, उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है बहुत लंबे स्केल पर, लार्ज स्केल पर। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट इज to restrict growth of human population through various measures including creating awareness and spreading literacy। लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वो कम से कम पॉपुलेशन को बढ़ाएं। ओके, यानी पॉपुलेशन को बढ़ने ना दें, लोगों को ऐसे मेजर बताने पड़ेंगे, ऐसी हानियां बतानी पड़ेंगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो उसके कारण हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट पॉल्यूशन बाय इंक्लूडिंग clean habits, keeping the environment clean through proper handling of wastes। जो भी वेस्ट निकलता है उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। जो भी वेस्ट है वो हमें ऐसे ही खुले में, पानी में या लैंड पर नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे उस वेस्ट को हैंडल करना है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज reforestation and afforestation, that is growing more and more trees. Many national parks and sanctuaries have been started for protecting plants and animals। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो करने चाहिए और बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बनाई गई हैं ताकि प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक प्रोटेक्शन शेल्टर मिल सके। नेक्स्ट इज यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक CNG, compressed natural gas in vehicles in place of petrol और डीजल। जैसे कि जो CNG व्हीकल हैं उनसे कम धुआं निकलता है, तो डीजल और पेट्रोल की जगह हमें CNG व्हीकल्स को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज prohibiting the use of polythene bags and single-use plastic when discarded. These bags do not decompose and mix with the soil like other organic waste। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक बैग के यूज़ पर बैन लगाना होगा। हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, मिक्स नहीं हो पाते सॉइल के साथ, इसीलिए हमें पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए।
Next are some important points. There are 7 continents, that are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. 4 major realms of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Continents are huge masses of land rising above the sea level. Plateau is also called level land. And the plateau of Tibet is the highest plateau in the world. Relatively low-lying land is called the plain. And various water bodies like river, sea, ocean, etc. are collectively known as hydrosphere. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.